हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लेक्चर के दूसरे हाफ में आप लोगों का स्वागत है। इस हाफ में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है बच्चों, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड जूओस्पोर्स। और इन डिप्लॉयड जूओस्पोर्स का क्या काम होता है बच्चों? दिस जर्मिनेट टू गिव राइज टू द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफिटिक विच इज प्लांट बॉडी, विच इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, एंड दस the diploid zoospores formed help to continue the asexual phase of life cycle of ectocarpus ectocarpus। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ द प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड। पहले मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूं, ठीक है, कि कैसे ये प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम बनता है और कैसे डिप्लॉयड जूओस्पोर्स बनते हैं। उसके बाद में एक एक स्लाइड रीड करता रहूंगा बच्चों। अगेन जस्ट लाइक दैट ऑफ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम फॉर्मेशन, a plurilocular sporangium may also be formed either by the first cell of any branchlet or the terminal cell of a small branchlet which suddenly starts behaving as a sporangial initial। ठीक है, अब ये फिर से याद रखना बच्चों, दिस इज द मेन एक्सिस ऑफ थैलस और द प्लांट बॉडी which is a sporophytic plant body or a sporophytic thallus, and we all know that it is always diploid। तो ये बात याद रखना है बच्चों, ठीक है। Now what happens? This sporangial initial, which is either the first cell of a branchlet or a terminal cell of a short branchlet, it divides once mitotically to produce two cells, one upper cell and one lower cell. Lower cell remains as it is again, and it will make one celled stalk of a future plurilocular sporangium. The stalk in case of plurilocular sporangium also, it remains one celled always, whereas upper cell will undergo repeated transverse divisions, mitotic divisions बच्चों, it will undergo repeated mitotic transverse divisions to produce a row of 6 to 12 cells। ठीक है बच्चों, and here I think they have shown 5 cells so at least we have to draw 6। okay bachcho, it is according to our literature that the upper cell, it divides by transverse divisions and it produces a row of 6 to 12 cells। here we have 1 2 3 4 5 and 6 cells, and now these 6 cells which are in a row, they will produce a plurilocular sporangium which looks elongated, large, club shaped structure। and how it is formed, that what happens to these 6 cells, these 6 cells will undergo repeated, याद रखना है बच्चों, ठीक है, undergo repeated vertical and transverse divisions, vertical and transverse divisions many times for many generations। These 6 cells, I will repeat one more time, these 6 cells will undergo repeated vertical and transverse divisions so that finally a structure is formed which is a multi-loculed structure, means a structure having many compartments, and the compartments here are cells। so finally it produces a large plurilocular structure called plurilocular sporangium which encloses a large number of cells, and finally the protoplast of each cell। ये याद रखना बच्चों, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। हर एक आपको यहां पर कई सेल्स नजर आ रहे हैं, इसी के बेस पर इनका नाम है बच्चों। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम का क्या मतलब हुआ? जिसमें सिर्फ एक लोक्यूल बनता है। लोक्यूल मींस कंपार्टमेंट एंड कंपार्टमेंट मींस सेल हियर इन दिस केस। ठीक है,
And what happens in plurilocular sporangium? Plurilocular means many locules, and locules means cells. It means a structure it's consisting of many cells or many compartments. And finally, what happens? एक सेल को मैं एनलार्ज करके बता देता हूं बच्चों. A cell, the protoplast of each cell, the protoplast of each cell finally metamorphose into a reniform or pyriform biflagellated zoospore. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. And I have already told you that the zoospore formed in this case is a diploid zoospore, and it resembles in morphology to the haploid zoospore formed in case of a unilocular sporangium. ये याद रखना बच्चों. ठीक है. यहां पर डिप्लॉइड जूओस्पोर्स क्यों बने बच्चों? बिकॉज वी हैव नोटिस्ड नो मियोसिस. यहां पर कहीं पर भी कोई मियोसिस नहीं हुआ है बच्चों. ठीक है. इस तरह से एक डिप्लॉइड जूओस्पोर बन जाता है एक्टोकार्पस का किस स्ट्रक्चर के अंदर? प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के अंदर. ठीक है बच्चों. एंड दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रा. ठीक है. यू नीड नॉट टू ड्रा कलर डायग्राम बिकॉज इट consumes much of your precious time during exams. So you will simply draw this diagram, but you have to draw this diagram बच्चों. ठीक है. जब क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम ड्रा करना आसान है, क्योंकि अगर आप डायग्राम ड्रा कर लेते हो तो उस क्वेश्चन का 50% आंसर वैसे मिल जाता है एटलीस्ट. ठीक है. अब मैं आगे के स्लाइड एक एक करके रीड करता जाऊंगा बच्चों. ठीक है. During the process of development of plurilocular sporangium, either the first cell of any branchlet or आगे लिख ले सकते हो आप, or the terminal cell of a short branchlet may behave as a sporangial initial, which it divides once mitotically to produce two diploid cells बच्चों. ठीक है. One upper cell and one lower cell. Lower cell remains as it is, and it will become one-celled stalk of future plurilocular sporangium, whereas upper cell undergoes repeated transverse divisions, which are mitotic divisions, to produce a row of 6 to 12 cells. Now the future sporangium, plurilocular sporangium, is dependent on these 6 to 12 cells. These 6 to 12 cells will undergo repeated, बस ये याद रखना बच्चों, repeated vertical and transverse divisions to form a large cone-like structure called plurilocular sporangium. And finally, what happens? The protoplast of each cell of this plurilocular sporangium, it gets metamorphosed or it gets transformed into a pyriform or reniform, a biflagellated diploid zoospore. और ये डिप्लॉइड जूओस्पोर क्या करेगा बच्चों? It will produce a sporophytic plant body. Now, regarding the release of these diploid zoospores, plurilocular sporangium dehisces breaks either at apex or little laterally also. It may. ठीक है. And these diploid zoospores are released one by one. They are not released like haploid zoospores in a single time. ठीक है. एक साथ ये रिलीज नहीं होते, ये एक एक करके रिलीज होते हैं बच्चों. After swimming for a while, these zoospores settle down at bottom with their anterior and downwards, retract their flagella, synthesize their cell wall, and germinate to produce a new plant body, which is a diploid plant body or a sporophytic plant body.
अगर आप जर्मिनेशन वाला पार्ट को अगर आप पूरा रिपीट नहीं कर सकते हो तो आप सिंपल लिख सकते हो कि इट जर्मिनेट्स, इट्स बिहेवियर इज सिमिलर टू द हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स फॉर्म्ड इन केस ऑफ यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एक ही तरीके से, ये हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर और डिप्लॉइड ज़ूओस्पोर एक ही तरीके से जर्मिनेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको लगता है कि ये इतना सारा लिख के अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो इट इज सिमिलर टू हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर्स। नाउ ये पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। मेरा एक पर्पस है बच्चों, आपको ये याद दिलाना है, बार बार याद दिलाना है कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है बच्चों, दैट रिजेंबल्स, दैट इज आइडेंटिकल टू द गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। देखने में दोनों एक जैसा है, सिर्फ इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कंटेंट होगा, ठीक है, वो डबल होगा और डबल होगा एज कंपेयर टू द गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये बच्चों इस स्लाइड को आप बार बार नहीं लिखोगे, इस स्लाइड को लिखना छोड़ दोगे। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल इमेज। ये लंबा कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम बच्चों। ठीक है, हम लोगों ने अपना, जब हमने अभी प्रोसेस किया इसका, तो हमने क्या किसमें किया बच्चों, द फर्स्ट सेल ऑफ अ स्मॉल ब्रांचलेट। ठीक है, और फर्स्ट सेल ऑफ अ ब्रांचलेट। ठीक है, हियर इन दिस केस व्हाट यू सी, that this plurilocular sporangium has been formed by the terminal cell of a short branchlet। क्यों? क्योंकि हमारे को छोटा सा ब्रांचलेट भी नजर आ रहा है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो इस स्लाइड का भी डायग्राम कोई ड्रा नहीं करना, ये जस्ट आपको दिखाना था मैंने कि प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम जो जिसका फॉर्मेशन अभी अभी हमने डील किया, अभी हमने डिस्कस किया, वो देखने में कैसा होता है बच्चों। ठीक है, ये कुछ कुछ है ना, हमारे मक्की की तरह दिख रहा है ना। हाँ, और लास्ट में बच्चों, अगर आप लोग चाहते हो जो जर्मिनेशन वाला है, ठीक है, चाहे वो हैप्लॉइड ज़ूओस्पोर फॉर्म्ड इनसाइड यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम हो, चाहे वो डिप्लॉइड ज़ूओस्पोर फॉर्म्ड इनसाइड प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम हो, लास्टली दे जर्मिनेट इन सेम मैनर। ठीक है, दोनों सेटल डाउन हो जाते हैं। ये इमेज आप उल्टा कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, यू विल मेक इट अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। ठीक है, देन दे जर्मिनेट एंड विल प्रोड्यूस अ न्यू plant body. Haploid zoospore will germinate to give rise to a new plant body, which is in the form of a uniseriate branch filament. ठीक है, and this diploid zoospore will give rise to a sporophytic branched uniseriate filament or new sporophytic thallus। अगर आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रा करना चाहोगे एग्जाम में, कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये वाला हिस्सा अगर आपका ज्यादा समय लेता है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ यहीं से आप कुछ इमेजेस ड्रा करके बता सकते हो कि द zoospores germinate in this way to give rise to a new vegetative thallus, which is either a sporophytic thallus or a gametophytic thallus accordingly। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तब तक के लिए मस्त रहिए मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।